السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ عمر اینڈ ٹوڈے آئی ایم ہیئر ایٹ دس ویل ناٹ نیو ریسٹورانٹ بٹ ریلیٹیولی نیو، آئی تھنک 1 سال ہوا ہے، اور یہ ای اسٹریٹ کلفٹن کراچی میں ہے ریسٹورانٹ. اٹس کالڈ چاپ. سپوزڈلی اپیرنٹلی اینڈ موسٹ پرابیبلی ہیو دا بیسٹ میٹ ان ٹاؤن. سننے میں تو یہی آیا ہے. So I've come to check it out and I have a surprise guest joining me today. میں ابھی نہیں ریویل کر رہی کہ مجھے کون جوائن کر رہی ہیں. بہت ہی اسپیشل انسان ہے میری زندگی میں because when I entered the industry, I won't tell you how many years ago, she was my biggest inspiration. اس وقت وہ اپنے پرائم پہ تھی. پھر she embraced motherhood, تو انہوں نے ایک بریک لی ہے and now she's ready to come back with a bang. I'm not going to tell you who she is. When she comes, you'll know. All right, میری salad آ چکی ہے. This is the prawn and avocado salad. Oh my God, it looks gorgeous. اور my guest is here too. I can see her coming. Hello. کیا حال؟ السلام علیکم. How are you? ہاں عید مل سکتا، ویسے کافی دیر ہو گئی ہے، مل لیتے ہیں. I missed you. Yes, same. Good are you looking? مجھے لگ رہا ہے یہ سیلڈ کھا کے یہ حال ہے. How good are you looking? الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. And happy. الحمدللہ. Yeah. ان کھانوں کی وجہ سے ہیپی میرا بیٹا. I know. اچھا کھاؤ، اچھا لگیں گے اور اچھا سوچو. اور اچھا سوچو. ہاں اچھا سوچو تو سب سے بڑی بات ہے. بالکل. اور جس چیز سے اچھی فیلنگز نہیں آ رہی اس سے دور رہو. بہت دور رہو. بہت دور. بہت. ہاں، ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. تو میں نے ویورس کو بتایا نہیں تھا کہ کون ہے میری گیسٹ آج کی. میں نے کہا تھا سرپرائز گیسٹ ہے. But I did say that when I entered the industry, she was my inspiration. اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کون ہے میری گیسٹ، ونیزا احمد، جن کے ساتھ بہت سارے فرسٹ جڑے ہوئے ہیں. میری تو زندگی میں she was one of my first inspirations. بٹ تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ آف کورس فرسٹ سپر ماڈل تو تھی ہی پاکستان کی. دا فرسٹ پرسن ٹو اوپن اے لائف اسٹائل اینڈ فیشن چینل، رائٹ. آلسو دا فرسٹ سیلیبریٹی ٹو اسٹارٹ ہر اون بزنس لائک لان برانڈ. اور کیا فرسٹ ہے ونی؟ ہے بہت فرسٹ ہے عائشہ. اولمپک ٹارچ پکڑا تھا. ہاں، چائنا والے اولمپکس کے لیے they chose me. Yes, they went through Pakistan. تو میں اسٹرنگز، جہان شیر خان، all those people. بلکہ میں نے سوچا تھا کہ میں کیوں، بٹ yeah, it was the first time from the entertainment industry کسی فیمیل کو چوز کیا. So that I'm very proud of. That was a first also. Yes, that was a first. اور بہت فرسٹ تھے بیکاز جب میں نے شروع کیا تھا کام، as you know، اس وقت انڈسٹری بہت چھوٹی تھی. تو اس وقت جو ہم کام کرتے تھے وہ فرسٹ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں تھا. اور اس زمانے میں ذرا obviously سوشل میڈیا نہیں تھا. بالکل. تو اس لیے ہمیں کوئی آئیڈیا ملتا تھا تو ہم کہتے چلو ہم یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. تو یوزلی وہ فرسٹ ہی ہوتا تھا. سوشل میڈیا پہ 25 سال پہلے بات کریں گے کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی زیادہ آسان تھی، یا یو فیلٹ کہ اب زیادہ اپرچونیٹیز اس کی وجہ سے آئی ہیں؟ اپرچونیٹیز تو آ گئی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اونلی بیکاز میں اس ٹائم کی ہوں. اس وقت ہم محنت بہت کرتے تھے. اس وقت کام کے لیے ہر انسان بہت محنت کرتا تھا. اب ذرا شارٹ کٹس، انسٹا ورلڈ ہو گیا نا، تو وہ انسٹا سب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے گا. تو میں ہوں کافی پرانی، تو تب سے اس 25 سالوں میں مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ہاں فرق ہوا ہے. اور آپ سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے بھی لے سکتے ہو اور غلط طریقے سے بھی لے سکتے ہو. تو آپ نالج گین کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اب میرا دل چاہ رہا ہے دوبارہ سے پڑھنے کو، تو میں آن لائن بیٹھ کے آرام سے کر سکتی ہوں. 10 سال پہلے کیا میں کر سکتی تھی؟ نہیں، مجھے کالج جانا پڑتا، وہ تشدد کرنا پڑتا. تو تشدد نہیں کہتے، کچھ اور کہتے ہیں، تشدد کرنی پڑتی. اللہ، ہاں پلیز، کوئی تشدد نہیں تھا. اپنی طرف سے بڑی اردو بول رہی تھی کہ اردو چینل ہے، لیکن تشدد پہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ سوشل میڈیا، ہاں اس وقت ہمارے پاس صرف ایک چینل ہوتا تھا. تو آبویسلی وہ جو ڈرامہ کسی نے کرنا تھا یا ایکٹنگ کرنی تھی تو وہ صرف
7 मेन लीड्स हो सकती थी कि हर दिन का एक ड्रामा होता था ना PTV का, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। आप बड़ी मेहनत करते थे, हम रिहर्सल्स करते थे, डायरेक्टर्स भी, प्रोड्यूसर्स भी, सारे मिलके बड़ा मेहनत करके काम करते थे। अब क्या होता है, मुझे फील हो रहा है फ्रॉम देन टू नाउ कि बस सेट पे आपको लाइंस मिलती हैं और आप कहते हैं चक चक करो करो, और वो इतने कोई रिहर्सल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, तो और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। इसी तरह आपका फैशन में भी यही हुआ। फैशन में हम बड़ी मेहनत करके काम करते थे, इन द सेंस के बड़ी वो जिद्दोजहद था, जिद्दोजहद था, तशद्दुद नहीं थी, जिद्दोजहद से। दुनिया का जरा तो उसमें भी ना एक्सपोजर नहीं होता था इतना कि एक आपका बिलबोर्ड आ गया या एक मैगजीन, 5 मैगजीन तक, बस वही था अल्टीमेट। अब तो एवरीबडी इज अ स्टार, सो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को मौका मिलता है अपने, अगर किसी अंदर टैलेंट है या शौक है, तो सोशल मीडिया has taught us how to do that. You can learn anything and everything through But social at that media. time, you didn't have कि YouTube से देख के आप सीख रहे हैं कि No, वो no, किस no, तरह no. करनी है। वो on set तो वो हमने सब कुछ सीखा। exposure या तो ट्रैवलिंग की वजह से आता था? ट्रैवलिंग की वजह से भी आता था। आई थिंक मैंने तो जितनी एक्टिंग मैं कहती हूँ मैंने सीखी है, क्योंकि मैं कभी एक्टर नहीं थी, मैं कभी मॉडल नहीं थी, मेरे को कोई शौक ही नहीं था, तो मैंने सेट पे ही सीखा। मैंने अपने पेयर्स से सीखा, अपने जो कॉलीग्स हैं उनसे सीखा। हुमायूं ने मुझे एक्टिंग में बहुत हेल्प की, नदीम साहब ने बहुत हेल्प की। इस तरह मेरे पेयर्स ने मुझे सिखाया एक्टिंग। अगर मुझे कोई एक्टिंग आती है तो मेरे कॉलीग्स ने मुझे सिखाया। और फैशन भी, जो फोटोग्राफर, एक बेचारा फोटोग्राफर स्टाइलिस्ट भी होता था, मेकअप आर्टिस्ट भी होता था, मिलके काम करते थे ना। Who was the first photographer that you worked with? Do you remember? वक्त तो नहीं, yes, the first photographer who ever took my photograph and made me realize कि कैमरा मुझे पसंद करता है। इसलिए कि अपने आप को तो लगता ही नहीं था ना उस जमाने में। मैं डॉक्टर बन रही थी और कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शक्ल कोई बेहतर थी। I didn't know that. Yes, I was studying to be a doctor, medical student थी मैं। तो कहीं इवेंट में मैं गई, वहाँ पे किसी ने मेरी तस्वीर खींची और दूसरे दिन मुझे वो जो भी थे, मैं भी बताती हूँ कौन थे, वो मेरे घर पहुँच गए। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे ना, कहीं से नंबर ढूंढाते घर का नंबर मिला, फ़ोन नंबर तो नहीं मिला, तो वो मेरे घर आ गए। तो वो थे ख़ावर रियाज, उन्होंने मेरी कोई तस्वीर खींची थी कहीं, और उन्होंने जब उसका रिज़ल्ट देखा तो वो फ़ौरन मेरे घर पहुँच गए कि भाई तुम्हारी तस्वीर बड़ी अच्छी है। और उनका उस वक्त इंटरव्यू आ रहा था, वो मुझसे पहले काम करते थे, उनका इंटरव्यू आ रहा था न्यूज़ में। तो उन्होंने मेरी इजाज़त लेने के लिए आया कि क्या मैं आपकी ये तस्वीर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब वो मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये मैं हूँ, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, लाइक दिस इज़ मी, या मैंने कहा अच्छा ठीक है आप छाप दें, बट एक शर्त पे कि मुझे आप ये तस्वीर ज़रूर देंगे। बात ख़त्म हो गई। मैं कनेड में थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। उसका जब इंटरव्यू छपा तो जब लोगों ने मेरी तस्वीर देखी तो फिर फ़ोन आने लगे ख़ावर को। तो फिर मैंने इन स्टेप का शूट किया था, तो वो अतर शहजाद ने किया था। और फिर जो तस्वीरें बाकी की जो प्रोफेशनली तस्वीर खींची थी, ये तो ख़ावर ने वैसे खींची थी ना। और फिर मेरी तस्वीर जब वो छपी तो साथ ही मुझे एक ऐड की ऑफ़र आ गई। और उस वक्त आई वॉज स्टडिंग, तो मैंने कहा अच्छा पैसे मिलेंगे। तो उस वक्त पहले ऐड के उस जमाने में मुझे 2.5 लाख रुपए मिले। तो आई थॉट आंटी से इजाजत ली, बड़े मुश्किलों से इजाजत मिली थी, बहुत। मैंने कहा Because I know that your mother is I know a very protective parent. बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किलों से मिली, और वो कराची में शूट थी, तो उन्होंने वो भी जाने दिया मुझे। और जो शूट मुझे मिली थी उस वक्त, ऐड जो मिला था, इट वाज सो फनी, टूथपेस्ट का कमर्शियल था, लेकिन मुझे तस्वीर छपी थी उसमें मेरी ऐसी स्माइल थी, दांत नहीं नजर आते थे। तो जब मैं कराची पहुंची तो सरवर मुसवी साहब वो शूट कर रहे थे। उन्होंने कहा सबसे पहले तो तुम मुझे अपने दांत दिखाओ। मैंने तुम्हें रख तो लिया, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया जो नहीं था, ना हम तस्वीरें भेज सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। तो सोशल मीडिया को इसलिए भी हमें बहुत फ़ायदा हो गया कि यू कैन रियली वर्क। बट आई फील लाइक प्राइवेसी तो बिल्कुल चली गई। एवरीबॉडी हैज अ फोन। हाँ देखो, हमारे जैसे लोगों को प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए कि वेयर इन द पब्लिक आए। दूसरे लोगों के लिए तो वो शौक है, दे वांट टू बी रिकग्नाइज्ड, उनको प्राइवेसी नहीं चाहिए। वो तो अपना हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालते हैं। यू नो दैट्स समहाउ, वो जो अटेंशन उनको मिलती है वो उनको अच्छी लगती है। सो सम पीपल, कई लोगों का, आई सेड टू ईच हिज ओन, किसी को कुछ चाहिए होता है। हमें इतनी अटेंशन की अब शौक
नहीं रहा ना. अच्छा, सो ऐड हो गया. हाइट्स जब सबने आपकी देखी हाँ, तो फिर रैम्प की बारी आई. देखिए रैम की बारी कॉलेज में वो भी था. हाँ. कॉलेज में मैं थी एंड कनेड में, एंड नीलोफर शाहिद ने तब काम शुरू किया था और उन्होंने एक फैशन शो कनेड में करना था. हम लंबे थे और ये हुआ कि जो नीलोफर शाहिद की नीस थी वो मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त थी. तो हमने सारों ने कहा अच्छा फ्री जोड़ा मिलेगा. मैंने कभी ज़िंदगी में हील में वॉक नहीं किया था. उन्होंने अपनी हील्स जो कि मेरे से 2 साइज़ बड़ी थी मुझे पहनाई और कहा कुछ नहीं होता तो मेरे कपड़ों में फिट आ जाओगी. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मॉडलिंग. वरना उससे पहले फिर उनका एक हफ्ते बाद फ़ोन आया कि आरिफ महमूद आ रहा है, हेरल्ड में मेरी या न्यूज़ लाइन या हेरल्ड में शूट है. तो मेरी अम्मी के पास आ गई कि प्लीज़ इसकी तस्वीर मुझे खींचने दो, इसके मेरे पास कोई मॉडल नहीं है एंड मैं कहाँ से कराची से बुलाऊंगी. इसको उस ज़माने में कोई भी लाहौर से नहीं होता था. सो देन अम्मी ने इजाज़त दे दी इसलिए कि वो जानने वाली थी. तो दैट्स हाउ आई वर्क विद आरिफ महमूद. और वो मेरी सबसे पहले शूट जो थी वो छपी थी. फिर बाद में एज अ शूट नीलोफर And then there was शाहिद. no turning And back. then it just अच्छा भाई, ब्रेक के इशारे आ रहे हैं, ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल टेक अ फ्यू बाइट्स. और फिर आई ऑल्सो टेल यू हमने और क्या ऑर्डर किया. प्रोटीन बिल्कुल. ही है. बस ठीक है. चलिए ब्रेक लेते हैं. I also remember another first would be कि you were one of the first women or girls at that time जो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर गई काम करने, अकेले रहने, बिल्कुल. and made a mark for yourself. बिल्कुल. And it was not easy at that time. नॉट एट ऑल. है ना? नॉट एट ऑल. लेकिन मेरा सपोर्ट सिस्टम, मैंने हमेशा से कहा है कि उस वक्त हालांकि लोग कहते थे कि जी लाहौर और कराची के कैंप्स हैं और होते होंगे, मुझे नहीं ये फील हुआ. इतना मुझे कराची ने वेलकम किया. तारिक अमीन, सना सफीनाज और जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा था, दे वेलकम मी विद ओपन आर्म्स के यू नो कि हाँ हमने काम करना है बिकॉज वो इतने एक्साइटेड थे. वो आई गेस कराची की शक्लें देख देख के तंग आ चुके थे. तो उनको नई शक्ल नज़र आई तो उनको लगा कि हाँ वी कुड डू इट. सो मुश्किल था स्पेशली अकेला रहना. इसलिए कि उस ज़माने में आज से 30 साल पहले कोई भी अनहर्ड ऑफ. तो अम्मी की भी बड़ी कंसर्न्स थी, ऑब्वियसली पूरा ख़ानदान, स्पेशली बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर और अकेली आई थी तो ज़रा लोग ज़्यादा बोलने वाले थे. बट एक चीज़ रियलाइज कर ली कि लोगों का क्या है, लोगों ने तो बोलना ही है. एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर सेल्फ और आपको पता है कि आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो और अच्छा नीयत आपकी अच्छी है और मेहनत करोगे तो कराची वाकई ऐसा शहर है जहाँ पे जो न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है. मैं अपने पाकिस्तान में मैं कराची के बारे में ये कहती हूँ कि जिन लोगों ने कुछ काम करना है और अच्छा काम करना है, जिन लोगों को आई से कि द डूअर्स कम टू कराची. You know, from all over the country, they are the ones that come. You, me, ज़्यादातर हम पंजाब से ही ज़्यादातर लोग आए हैं. तो कराची उस वक्त भी मेरे लिए बहुत वेलकमिंग था और अभी भी, आज भी मुझे लगता है कि वो चेंज नहीं हुआ. Yes, we are going to come जो हैं to this. पहले मुझे tell me, are you ready to eat? I am so ready to eat. लेकिन हाँ टाइम तो ज़रा लेट है लेकिन this is my breakfast. This is I'm breaking my fast. क्योंकि मैं तो करती intermittent diet. अच्छा, आप intermittent fasting वालों में से हैं. I won't call it intermittent anymore. Time restricted. हाँ, I try 1 meal a day. वो वाला है. और सुबह उठते साथ तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती. कुछ भी नहीं. पानी, electrolytes, कॉफी, चाय भी नहीं, चाय भी छोड़ दी. बट ब्लैक दूध कॉफी छोड़ दिया. ब्लैक कॉफी. हाँ, बट कितने सालों से ये खाली पेट ब्लैक कॉफी हो रही है? खाली पेट ब्लैक कॉफी इतनी ज़्यादा नहीं मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ. अगर रात को जागी हूँ तो फिर दूसरे दिन करती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कॉफ़ी भी ना पीऊँ. नॉट अ कॉफ़ी ड्रिंकर सच, लेकिन उसके फ़ायदे हैं तो इसलिए मैं पी लेती हूँ. उसके काली कॉफ़ी के बहुत फ़ायदे हैं तो मैं पी लेती हूँ. और मेरी यही कोशिश होती है कि जब मैं अपना फास्ट ब्रेक करूँ, मिलकर तोड़ूँ और जब पहला मील खाऊँ तो वो ज़्यादातर प्रोटीन हो. वरना ये एवोकाडोज मेरे ज़रा मुझे बड़े फेवरेट टाइप लग रहे हैं. बिकॉज मेरी कोशिश होती है कि और किसी चीज़ पे खर्चा करूँ ना करूँ, खाना बेस्ट क्वालिटी, खाना पीना और अपने मुंह पे जो लगाना है बिल्कुल वो क्वालिटी का होना चाहिए. सोच क्वालिटी की होनी चाहिए, खाना क्वालिटी का होना चाहिए. व्हाट इज योर डाइट लाइक? तो कोविड के बाद ना मेरी जो चाहत थी ना खाने की वो ख़त्म हो गई. लोगों का टेस्ट जा गया, मेरा टेस्ट नहीं गया. मेरा खाने का दिल ही नहीं चाहा उसके बाद से.
पता नहीं क्यों. और वैसे ही मैं ज़रा डिप्रेशन से जा रही थी, तो वैसे ही मुझे भूख नहीं लगती थी, आफ्टर इशा. तो मेरा तो भूख और नींद Would you like to खत्म. speak about that? हाँ, मे बी लेटर. हाँ, Okay, तो मैं okay. वो भूख और मेरी नींद ख़त्म हो गई थी उसके बाद. तो अब उसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया, इसलिए कि ज़रूरी है खाना खाना. और जो आप खाते हो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि वो आपकी स्किन के ऊपर, आपकी वैसी वेल बीइंग तो वो जो 4 साल का मैंने ब्रेक लिया, जो डिप्रेशन वाला मेरा ब्रेक था, उसमें मैंने रिसर्च बड़ी की एंड आई बिकेम एक्सट्रीमली हेल्थ कॉन्शियस. आई मीन उससे पहले भी मैं थी, इसलिए थी कि मैंने बड़ी लेट इंडस्ट्री मॉडलिंग नहीं, लेकिन आयशा उस वक्त मैंने कभी, याद नहीं मैं कहाँ करती थी, बिरयानियां भी खा रहे पूरे थे, केक खाते थे. हाँ. उस वक्त तो मैंने कभी सोचा भी नहीं मैंगोज था. एंड आइसक्रीम. या हमेशा बटलर्स का वो चॉकलेट मिल्क शेक मैं रोज पीती थी. बट हुआ ये कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने बच्चा पैदा करना है, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इफ़ आई वांट कि उस उम्र में जब मैंने बच्चा पैदा किया, मैं 40 साल की थी तो मेरी बेटी पैदा हुई, तो बड़ा ज़रूरी था कि मैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखूं. तो वो कॉन्सेप्ट मुझे, साइंस की तो स्टूडेंट दिस थी इज सो मैं. इम्पोर्टेंट. और एनी कोई लड़कियां, खवातीन जो लेटर ऑन अपनी ज़िंदगी में दे वांट टू बी अ मदर, what are the tips you can give? यही कि अपना ख्याल रखो. मैं तो कहती हूँ, चाहे आपने बच्चा पैदा करना है नहीं करना, चाहे आपने शादी करनी है नहीं करनी, जो भी आपने करना है, आप अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने कभी भी नहीं किया था. 40 साल की उम्र में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई वो जो कहते हैं ना, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, दैट इज़ सो ट्रू. आई नेवर रियलाइज दैट. उस वक्त पहले तो जो मिल जाता था, बिरयानी मिल रही है रात के वक्त, सुबह के 4 बजे भी खा रही हूँ, कुछ भी खा लेती थी. मेरा कभी बिल्कुल सोचा ही नहीं था कभी सोने का कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब वो मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने रिसर्च और करना शुरू किया, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अपना मैं ख्याल रखूं. तो मैंने तब डाइट अपनी ठीक कर ली. तो मैंने ऑर्गेनिक शुरू कर दिया, बिकॉज मैंने फिर बहुत खपती हूँ, मैं ज़रा कैंसेरियन हूँ, मैं बहुत खपती हूँ हर चीज़ के अंदर, खाल उतार के उसको देखती हूँ. तो फिर मैंने ऑर्गेनिक खाना शुरू किया, क्योंकि मुझे ख्याल आया कि कितने पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं और उससे कितना हमें फ़र्क पड़ता है, हमारे हार्मोन्स में कितना फ़र्क पड़ता है. वो मैंने अपना ठीक किया. और शुरू में तो मैंने अपनी नींद ठीक की थी, बट वो बच्चा पैदा हो गया तो फिर तो नींद खत्म हो गई. But when they started going to school, you have 2 daughters, माशाल्लाह. अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस्लामाबाद में लोग मेरी बात मानते नहीं हैं, लेकिन मैं वाकई 9 बजे सो जाती हूँ रात को. तो इस्लामाबाद में तो आसान है, रात को 9 बजे सो जाती हूँ, फजर पे मैं उठती हूँ. सो मैंने ये रियलाइज़ किया और मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की हर जान, जिसके अंदर जान होता है, लिविंग चीज़ जो है, वो सूरज के साथ उठती है और वो सूरज के साथ सोती है. तो मैं क्यों नहीं सर्केडियन रिदम के साथ, जिसको कहते हैं. और फिर मैंने रिसर्च करके ये भी देखा और मुझे एहसास हुआ कि भाई हमारा सोना इसलिए इतना ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी जितनी सफाई हो रही है, जितनी हीलिंग हो रही है, वो सब सोने के वक्त हो रही है. उससे पहले मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था. और बीमारियां भी आपको इसलिए होती हैं बिकॉज आपके जैसे 10 बजे आपका लिवर ठीक होता है, क्लेंस करता है, फिर 11 बजे कुछ और होता है, फिर 12 बजे कुछ और होता है, 2 और 4 के बीच में कमी कुछ होता है. हाँ, बाय द वे, तो हर आवर आपका, और ये नहीं है कि अब आप सो गए हो तो आपका ब्रेन, जैसे कहते हैं कि जो कहते हैं कि आपकी रूह निकल जाती है एंड योर बॉडी इज डूइंग नथिंग, योर बॉडी इज एक्चुअली क्लेंजिंग इटसेल्फ, इट्स हीलिंग इटसेल्फ. तो मुझे तब रियलाइज हुआ, मुझे एहसास हुआ, एंड आई थिंक वो भी एहसास मुझे तभी हुआ जब मेरी बहन चली गई कि हम तो एक बॉडी ऐसी है जो कि खुद ब खुद हील करती है. अल्लाह ने हमें ये नेमत दी हुई है. सेल्फ हीलर्स हैं हम एक्सटर्नली चीज़ों को ढूंढते हैं कि हमें हील करें. बिल्कुल. और आयशा, मुझे बात एहसास ही नहीं हुई, एंड इट हिट मी. 18 साल पहले मुझे कहा गया था कि मुझे लिम्फोमा है. बिल्कुल. एंड मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे मेनिंजाइटिस हो गया था, मुझे लिम्फोमा हो गया था. तो मुझे ये मैं स्टोरी हर एक को सुनाती हूँ, कभी मैंने टीवी पे ये वाली स्टोरी नहीं सुनाई, बट आज आपका शेयर ज़रूर सुनाऊंगी कि जब मैं बहुत बीमार हुई और
میرے سر میں بہت درد ہوتی تھی, تو میرے ہر ایک نے کوشش کی نا, اس ڈاکٹر کے چلی جاؤ, اس ڈاکٹر کے چلی جاؤ, 2 ہفتے سے سر درد نہیں ختم ہوتا ہے. ہاں اس وقت تو 4 گھنٹے سوتی تھی اور باقی 20 گھنٹے کام کرتی تھی, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے, ہر وقت. تو میں فرانس میں کام کر رہی تھی, میں کراچی آئی, دوسری دن میں نے فلائٹ پکڑ کے ملیشیا چلی گئی, اس کے تیسرے دن فلائٹ پکڑ کے کہیں اور چلی گئی. کوئی ایوارڈز تھے نا ملیشیا میں, تھے بالکل. تو میں اتنی بیمار ہو گئی کہ میرے سر درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو شاہین سعید ایک بڑی اچھی میک اپ آرٹسٹ ہیں, وہ میری بڑی اچھی دوست ہیں, تو انہوں نے کہا اچھا ایک اسپریچول ہیلر ہے, میں آپ کو ان کے پاس لے کر جاتی ہوں. اینڈ کلثوم آپا ان کا نام تھا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, شی از پاسڈ اوے. تو وہ مجھے ان کے پاس لے کر گئی اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ فریج کے اوپر دعاؤں کی کتاب ہے, اس بچی کو دے دو. تو جب انہوں نے دعاؤں کی کتاب مجھے دی تو اس کے اوپر لکھا تھا کینسر کی دعائیں. میں نے کہا نہیں آپا مجھے کینسر نہیں, میرے کو صرف سر میں درد ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی نرو پریس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا بس یہ کتاب ضرور پڑھنا, یہ دعائیں ضرور پڑھنا. اس کے 2 ہفتے بعد جب میری بایوپسی ہوئی تو انہوں نے کہا یس وی فاؤنڈ کینسرس سیلس. تو اس سے پہلے میں کہتی ہوں ٹھیک ہے میں نے قرآن پڑھا تھا, ہم نے سب کچھ وہ ہم کرتے ہیں, لیکن وہ بلیف یا وہ انکلینیشن نہیں ہوتی اتنا. میں نے وہ کتاب کھولی اور اس میں وہ رقیہ تھا اور اس میں ہر وہ دعائیں تھیں, سورہ بقرہ کی دعائیں تھیں, بہت ساری تھیں, وہ میں نے پڑھنا شروع کیا. اینڈ obviously people around me, and I tell you 3 months later I only took steroids because وہ stage 0, ہاں وہ stage 0 جس کو کہتے ہیں. اینڈ ماشاءاللہ ڈاکٹرز نے کہا نہیں ہم سے شاید غلطی ہو گئی ہے, you know you're fine, there is no cancer in your body. How did that make you feel? At that time I thought کہ اچھا چلو غلطی ہو گئی تھی. اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ دعائیں تھیں, in that belief جو میں نے کہا کہ نہیں مجھے ہو ہی نہیں سکتا کینسر, to the point that I didn't even tell my mother. I only told my sister شوکت خانم سے میری جتنا رزلٹ آتا تھا وہ میں اپنی بہن کو امریکہ بھیجتی تھی, میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا. صرف a few people saw me because اس زمانے میں اتنی پتلی ہو گئی تھی, میں 85 پاؤنڈز ہو گئی تھی, یو نو کچھ 40 kg ہو گئی تھی, ڈبل زیرو سے بھی کم. کہ شیرو نے مجھے جب پہلی دفعہ دیکھا تو اس کو وہ رونے لگ گیا بیکاز آئی جسٹ اسکن اینڈ بونز. سو دعاؤں میں اتنا شفا ہے, اینڈ دیٹس I didn't realize then. اب میں ریئلائز کرتی ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں, اور کھانے کے تھرو اللہ میاں نے کہا ہے کہ کھانے میں میں نے سارا شفا ڈالا ہوا ہے. There is a remedy in food. So positive thinking, positive energy in food, کیونکہ everything is energy. صحیح کھاؤ گے تو سارا کچھ ٹھیک رہے گا. آپ کو آپ کی باڈی کو محنت نہیں کرنی ہوگی کلینس کرنے کی. چکر یہ ہوتا ہے نا, اگر اچھا جو اللہ نے بنایا ہے وہ کھاؤ, جو انسان نے بنایا پروسیس چیزیں تو بالکل نکال دیں. بالکل. اور اب تو فائنلی کچھ چیزیں بوائکاٹ ہو رہی ہیں بیکاز آف ویریس ریزنز. وہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ بہت سارے ایسے برانڈز ہیں جو صحت کے لیے, اور لوکل برانڈز یوز کرو نا, اور جو لوکل برانڈز بھی ہیں ان کو بھی میں کہتی ہوں پلیز پروسیس نہ کیا کریں, کوشش کریں کہ فریش ملیں. لیکن وہ شیلف لائف زیادہ کرنے کے لیے چیزیں پروسیس ہوتی ہیں. This is a very long debate. I know. We can go on for hours. Into this because you and I believe in this so much. We can go on for hours. Let's talk about what do you want to talk about? Well, I want you to eat. کیونکہ ہماری ڈیل تھی کہ میں بالکل بات کریں گے, آپ تھوڑی سی بائٹس لیں. اور میں سوال یہ کرتی ہوں کہ when you started out, اس وقت you were, I would say you were the first supermodel that Pakistan saw. BB تھی اس ٹائم میں, عالیہ تھی, سونیا مناز تھی, جو کہ اتنی لمبی تو نہیں تھی بٹ شی واز ڈوئنگ ریئلی ویل. اور کون تھا, اور بہت لولو جا چکی تھی جب میں نے شروع کیا. ایرج تھی, زویلا, the gorgeous ones. And you guys were a really sensible, educated crop of models. اب بھی بہت بہت امیزنگ لڑکیاں ہیں who are coming up, and you know I'm amazed to see کہ کتنی سینس ہے لڑکیوں کو اب بہت زیادہ سیانی ہو گئی. جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. growing up I was a wreck. سوشل میڈیا, کوئی اسٹائل کا کانسیپٹ نہیں تھا. سوشل میڈیا سے انہوں نے سیکھا. ہم نے کس سے سیکھنا تھا؟ ہمیں سوشل میڈیا میں تم سے سیکھ لیا, اس سے سیکھ لیا, اس سے سیکھ لیا, اسی طرح سیکھا نا ہم نے دیکھ کر. یا لائک یو سیڈ کہ اگر ہم نے ٹریول کر لیا تو باہر دیکھ لیا, ورنہ تو تب ہمارے پاس صرف کاسمو اور وہ خرید کے, یا وہ بزاج اور وہ personal style was very minimalistic. I remember
number, हमेशा which से is रहा है। great. मुझे भी से हाँ। मुझे फैशन को कभी भी मुझे शौक नहीं था। कि लाद ले अपने ऊपर बहुत सारी चीजें, वो तो कभी करना नहीं। पड़ता था। अभी भी मेरे कोई मुझे पैसे देगा तो मैं मेकअप करूँगी, मेकअप नहीं करूँगी। वो मैं बाहर ले कभी बनाती। ये मेरा खानदान वालों का रोना है कि कभी तो तैयार हो जाएगा, और मैं कहा पहले पैसे दो फिर तैयार होंगी। शौक ही नहीं था। अच्छा, so you said goodbye to all of this जब आपने सोचा कि अब मुझे माँ बनना है। जब माँ बनना है, बिकॉज उस वक्त भी मैं ज़रा थोड़ी सी आई हैव OCD, और जब मैं किसी चीज़ में डल जाती हूँ तो मैं डल जाती हूँ, और तब भी इसलिए मैंने तब शादी की और रियलाइज़ किया कि जब बच्चा पैदा होगा तो तब आया नहीं हो सकती। इसके नाम मेरी अम्मा ने हमें इतना बड़ा किया, एंड मेरे बच्चे मैंने ही तरबियत देनी, अल्लाह मियाँ ने मुझे बनाया ही इसी मकसद के लिए, तो मैं ही दूंगी, कोई और तो नहीं देगा। तो इसलिए मैंने फिर 10 साल कोई काम नहीं किया। मैंने इंतज़ार किया कि मेरी बेटियां जब बड़ी हो जाएं, इतनी अक्ल आ जाए। हालांकि अभी भी बड़ा मुश्किल है, अभी भी वो कहती है नो मामा अभी ना जाएं, व्हेन विल यू बी बैक, और ख़ुद भी नहीं आना। तो ज़रा दिल को वो रख के कि मैं बहुत खपती किस्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होती थी। मुझे याद है अभी भी नादिया हुसैन की बेटी एक दफ़ा बीमार थी और उसने जाना था, मैंने उसको थोड़ा डांटा कि नहीं काम और ये, और अब मैंने उससे सॉरी हालांकि नादिया तो एक सारी माँ, हाँ वो तो आई डोंट नो हाउ शी डज इट, आई रियली डोंट नो हाउ शी डज इट। 4 बच्चे माशाल्लाह, और वो टक 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 फोन पे सारा बिजनेस भी है, 3-4 बिजनेसेस हैं, एक भी नहीं है। हाँ। तो वो फिर एहसास हुआ कि नहीं, अपने आप को भाई घर पे बैठ जाओ और अपने बच्चों का ख्याल रखो। इसकी दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। आई एम नॉट सेइंग कि जो औरतें काम करती हैं वो उनकी मजबूरी होती है, ज़रूर करें, लेकिन मेरे पास उस वक्त लग्जरी थी कि मैं घर पे रहूं, और मैंने डिसाइड ये किया था कि मैंने माँ बनना है। तो इससे फिर मैंने 10 साल कोई काम नहीं किया। आई मीन ऑन एंड ऑफ थोड़े छोटे प्रोजेक्ट्स ले लेती थी, लेकिन लंबे नहीं। अच्छा, टाइम फॉर अनदर ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी आर गोना स्पीक अबाउट many more amazing things, so take a break. वेलकम बैक टू 365। हम चॉप पे हैं, हमारी स्टेक्स आ गई हैं, सर्व हो गई हैं, मुंह में पानी आ रहा है। एक बाइट ले पहले, बिल्कुल है ना? सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले तो सब्जियां खाएं ना। And alhamdulillah, thank you to everyone who has prepared this food and brought it to our table. आयशा, सच्ची से मैं ये करती हूँ और मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। तोड़ा है तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने खाने से बातें करती हूँ। मैं भी तो मैं खाते हुए, हाँ बिल्कुल go ऐसे ही inside है, and nourish me. बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ मैं। खाते वक्त मेरे दिमाग में यही होता है जिस तरह अल्लाह का पहले शुक्र करना चाहिए, और खाते वक्त ये भी तो जानदार। चाहे मैं चॉकलेट शेक पी रही हूँ, उस वो भी मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ जो इसकी जो अच्छाई है वो मुझे दे दे, जो बुराई है वो सब निकाल दे। सो यस, एक बाइट ले रहे हैं। बिल्कुल बाइट ले रहे हैं, और सबसे पहले तो ब्रोकली। एक्सेलेंट। देखो प्रोटीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हम रियलाइज़ नहीं करते, स्पेशली मेरी उम्र में आकर। जब आप मसल, आप अगर आप जिम ना जाएं, मेरे जैसे इंसान हो, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप वेरी गुड। और अगर आप एनिमल प्रोटीन नहीं खा रहे, ब्रोकली इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। बिल्कुल, एंड लॉट्स ऑफ आयरन। लॉट्स ऑफ आयरन, बिल्कुल। वो प्रोटीन की अहमियत तो मेरी सर्जरी के बाद, जो बोन सर्जरी हुई है, मुझे समझ आई है ना कितना ज़रूरी है, कि कितना ज़रूरी है। एंड टू ईच देयर ओन। ठीक है, बहुत सारे लोग वीगन हैं और वो समझते हैं कि सब्जियों से उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, प्लांट से, लेकिन मैं एनिमल प्रोटीन खाती हूँ। मैं भी खाती हूँ। मैं एक ज़माने में हो गई थी वेजिटेरियन, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है एनिमल प्रोटीन। तो अब मैंने जो चिकन है वो मैंने कम कर दी है, बल्कि तकरीबन नहीं खाती हूँ मैं, और अगर खाती हूँ तो देसी मुर्गी खाती हूँ, वरना नहीं खाती। और गोश्त में बहुत खाती हूँ, एंड सी फूड। हाँ, बाकी सब कुछ खाती हूँ, बस वो जो टीके वाली चीज़ें हैं, और वो वाले और रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें, वो कुछ भी नहीं। मीठा बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया हुआ इस तरह का रिफाइंड शुगर का, वरना खजूर और शहद और हर चीज़ के अंदर खजूर डाला जाता है, लेकिन उसको मैंने मीठा करना है। तो वो मिल्क शेक में भी और कीफर में भी, इसलिए कि पहले मैं कीफर में शहद डाल लेती थी, तो इसलिए मैंने चीनी छोड़ दी अपनी ज़िंदगी से। अच्छा, I would like to speak about something that is, I know, a very emotional topic.
لیکن چونکہ میرا بہت گہرا تعلق تھا اس انسان سے آپ کی. یو لاسٹ یور سسٹر, ینگر سسٹر, a few years ago, and grief کو کے تھرو گزرنا, I want to know how did that change you? Because she was what, 24, ہے نا? 24. It changed me completely. She was 24. She was starting her professional life. life. کالج سے واپس آئی تھی ماشاءاللہ, ایک NGO اتنا اچھا کام کری تھی, بچوں کے لیے کام کری تھی. مجھے اس نے بلایا تھا, یاد ہے جب آئی تھی اسلام آباد اس کانفرنس کے لیے, بچوں کے لیے وہ کتنا کام کری. دیکھو اس کی جنتی تھی اس لیے اس نے یہ کام کرنے تھے. اینی وے, پوائنٹ بینگ کہ میری زندگی, میرا خیال 3 اسٹیجز ہیں جو لوگوں کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں, اور میری ہوئی. پہلا جب when my father died I was 18, لیکن اس ڈیتھ نے میں نے گریو نہیں اس طرح کیا, پتہ نہیں کیوں, حالانکہ وہ میرے والد تھے اور میری زندگی بالکل بدل گئی تھی, لیکن مجھے اتنا فیل نہیں ہوا تھا. آئی گیس میں چھوٹی تھی اس وقت, 18 سال کی تھی یا پتہ نہیں تھا, بٹ اس نے مجھے بڑا اسٹرانگ بنایا اس وقت. اینڈ آئی سیڈ کہ نہیں, اگر باپ نہیں ہے تو کیا ہوا, میں بنوں گی. ہاں کہ میں بنوں گی. اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جب ہم پاکستان واپس آئے, کہ میں باہر رہتی تھی, جو میں پاکستان آئی تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا پاکستان میں, وہ فلاں کی بیٹی. انفارچونیٹلی ابا تھے نہیں تو میں کسی کی بیٹی نہیں تھی, اور ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا, کوئی رشتے کی بھی بات ہوتی تھی کہ باپ کون ہے. تو میں نے پھر کہا کہ اچھا, پھر میں دکھاتی ہوں میں کون ہوں, میں اپنی پہچان خود بناؤں, میں مریض احمد بن کے دکھاتی ہوں. بالکل, تو وہ ایک چینج آیا تھا. بٹ دیٹ ڈیتھ ڈڈ ناٹ چینج می. جس طرح مجھے عشا جب وہ گئی, بیکاز وہ میری چھوٹی, ایسے اٹ واز مور آف آئی تھنک جو جیسے اپنا بچہ ہوتا ہے, بیکاز وہ مجھ سے 25 سال چھوٹی تھی. پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ گریف ہے. And she lived with you for many years. For many years. بالکل میرے ساتھ رہی, اسکول میں رہی. تو اس لیے خیر دوسرے بہن بھائی بھی میرے بڑے کلوز ہیں مجھ سے, لیکن وہ چھوٹی بیبی تھی ہماری. تو وہ گریف مجھے شروع میں تو نہیں سمجھ آئی کیا ہے, بٹ دین آئی ریئلائز مائی کیپیسٹی ٹو لو, کہ او مائی گاڈ, کہ ہم انسان اتنا کسی سے پیار کر سکتے ہیں. کہ میں 4 سال میری زندگی کے ایسے لگتا تھا جیسے غائب ہو گئے. That's when you went into depression. Complete depression, کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی, میں کپڑے نہیں بدلتی تھی, میرا دل نہیں چاہتا تھا بستر سے نکلنے کا, بیکاز وہ ایک I guess I realized کہ وہ ایک کیمیکل کی چیز تھی نا, کیمیکل تھا. And your daughters saw this. And my daughters saw this. And that's when last year جب میری ایک دوست ہیں, وہ تھیراپسٹ ہیں, اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں دکھا سکتی, تمہاری بیٹیاں نہیں جانتی کہ تم کون ہو. ان کو تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ماں ایک ڈپریسڈ عورت ہے, ان کو تو نہیں پتا, ان کو تو صرف یہ بھوجی ہوئی, اور ان کو لگے گا ہماری وجہ سے ہماری کوئی کمی ہے. بیچاری اتنی چھوٹی تھی, ان کو کیا سمجھ آنی تھی. عائشہ ایک 5 سال کی تھی اور ایک 7 سال کی تھی, تو ان کو تو صرف یہ پتا تھا کہ ماما گھر پہ بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرتی. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں, اینڈ اٹ براٹ می کلوزر ٹو گاڈ. دیٹس وین عشا کو میں یہ کہتی ہوں کہ اٹ ہیپنڈ, ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن, اینڈ آئی تھنک عشا کا جانا میرے لیے یہ تھا کہ میرا سب کچھ بدل گیا, میرا سب کچھ بدل گیا, میری آنکھیں کھول دی اللہ نے. اینڈ آئی تھنک, اور میں نے یہ ریئلائز کی جو انرجیز اب میں سمجھ آئی ہے مجھے, وہ عشا کی وجہ سے آئی. جیسے کہ میں نے وہ کھوجنا شروع کیا, میں نے قرآن کی ٹرانسلیشن پہلی دفعہ, پہلے صرف قرآن پڑھا ہوا تھا, اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھی تھی. میں نے پھر ٹرانسلیشن پڑھی, پھر میرا دل چاہنے لگا کہ میں اللہ سے باتیں کروں, تو میں نے نمازیں شروع کر دی. سو اٹ ایکچولی عشا از دا ون who brought me closer to God. میں ہمیشہ کہتی ہوں. اور میں نے پھر کیونکہ میرے تھا نا کہ کہاں گئی, کیا ہوا, تو یس اٹ چینج مائی لائف. لیکن اب وقت آیا ہے بات کرنے کا آپ کے فیوچر اور کرنٹ پلانس کا. You are back in Karachi. I can see. I've met you a couple of places. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بالکل آئی تھی انٹرویو کے لیے, اور پھر گھر یاد آ رہا تھا. کراچی تو مجھے گھر لگتا ہے نا. آئی لو کراچی, آئی لو دا پیپل. آئی نو کسی طرح میں سارے کراچی کو لوگوں کو اسلام آباد لے جاؤں. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ اسلام آباد سارے شفٹ ہو جائیں نا, تو اسلام آباد بہت اچھا ہو جائے گا. میں کھلی فضا میں اس صفائی اور ان پہاڑوں کے وہ اچھے موسم میں. لیکن کراچی کے لوگ
नहीं इस्लामाबाद में आपको मिलते हैं। उसका शहर बहुत अच्छा है। सो आई थी बिकॉज आई एम लुकिंग, आई एम बिजनेस दोबारा मैं शुरू करना चाह रही हूँ। कपड़े नहीं डिज़ाइन करूँगी, नहीं यार, पता है मुझे ना प्रिंट से रिएक्शन हो गया है और वो मुझे लगता है कि आई मूव्ड ऑन फ्रॉम लॉन। सो बिकॉज आई बिकम मोर होलिस्टिक और ये सब कुछ, तो अब मैंने ऑनलाइन एक कोर्स शुरू किया हुआ है हर्बलिज्म का एंड सेल्फ हीलिंग का, तो मैं वो सीख रही हूँ। एंड मैंने सोचा कि पहले मैं वो करूँ और जो मेरे देसी टोटके मैं अपने मुंह पे लगाती हूँ और वो सारा कुछ करती हूँ, लेकिन हर बंदा मुझसे पूछता है आप स्किन पे क्या करती है। एक तो मेरी माँ और का, मैं भी पूछने वाली थी, हाँ, इतनी अच्छी स्किन है आपकी। थैंक यू। टू डेट I don't see any wrinkles, I don't see any pigmentation. कोई स्किन केयर टिप्स तो नहीं होता ही है कि एक तो फिर मेरी अम्मा माशाल्लाह यू सीन माय मदर के जेनेटिक तो है ही है, लेकिन जैसे सबकी स्किन जैसे मैं खाने से बातें करती हूँ ना, तो मेरी अम्मी ने मुझे ये बात सिखाई है कि मैं अपनी स्किन से भी बातें करती हूँ। क्या बात करती हैं? अम्मी करती हैं, मेरी अम्मी हर नमाज में अपने स्किन के लिए दुआ मांगती हैं, अपने बालों के लिए दुआ मांगती हैं, अपनी आँखों के लिए दुआ मांगती हैं, तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। लेकिन साथ साथ में मैं देसी टोटके बहुत करती हूँ, इन द सेंस कि मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें अपने मुंह पे लगाती हूँ। आई यूज़ अ लॉट ऑफ ऑयल्स, क्लेंजिंग भी मैं नेचुरल चीज़ों से करती हूँ। मसलन किस चीज़ से? मेकअप किस चीज़ से उतारती हैं? मेकअप मैं कोकोनट ऑयल से उतारती हूँ। Doesn't that make you break out? No, not Because you're lucky. It makes you break out. तो फिर मैं रोज़ No. वाटर, देखो फिर रोज़ वाटर ना, आई यूज़ रोज़ वाटर बिकॉज आप फिर गलती ये करते हो कि जब आप कोकोनट ऑयल लगा रहे हो या कोई भी, उसके साथ पानी मिलाएं आप उसको मल्सिफाई करें। हो जाता है ना? नहीं होता। तुम देखो अपने पाम पे रखो, उस आपकी अपनी जो गर्माइश है, बिकॉज आप भी तो इलेक्ट्रिकल, आपके अंदर से भी तो हीट निकलती है, तो आप उसको गर्म करके अपने मुंह पे लगाओ और पानी के अंदर थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि ब्रेक आउट होता है। मेरा तो एक स्किन केयर ब्रांड है और मेरा आपका तो बहुत अच्छा है, वो कोकोनट ही का ही, बस देखा, एलोवेरा। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपके मुंह से भी तो मैं यही एलोवेरा उन्होंने बोल दिया, मैं कोकोनट में एलोवेरा बहुत इस्तेमाल करती हूँ। क्या बात है। On that note, we have to say goodbye to you. एंड में सारे अपने गेस्ट से मैं कहती हूँ कि एक मिनट का एक मैसेज, I think 2 मिनट नहीं दे दिया मैंने। just going to say कि इससे बेहतर तो मैसेज हो नहीं सकता है ना, लेकिन क्योंकि हमने उसको एक गो में कभी कभार एज अ सेपरेट क्लिप हम चलाएंगे ऑन डिजिटल, तो एक मिनट का कोई मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर फैंस, द यूथ, एनीबॉडी। मैं हर एक को यही मैसेज कहती हूँ और हमेशा से कहती रहूँगी और कभी बदलूंगी नहीं कि गो आफ्टर योर ड्रीम्स। अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा बनाया और आपका कोई पर्पस है। अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये याद रखिएगा। जो आपके लिए बना हुआ है वो आपके लिए बना हुआ है। सो जो आपके ख्वाब है, जो आपकी चाहत है, लोगों के बारे में ना सोचें, अच्छा करें, पॉजिटिव रहें और उसको पॉजिटिवली करें, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और मेरा हमेशा से ये है, इफ बिल गेट्स कैन डू इट, सो कैन आई। एब्सोल्युटली। तो दुनिया में मैं भी कहती हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट सो कैन आई। यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट, मतलब कि अपना दिमाग लगाएंगे तो वो होगा, बिकॉज योर दिमाग, आपका ब्रेन एक सुपर पावर है। या आप we're super women, we're supermen, we're superhuman beings. Superhuman. Yes. So go after your dreams. हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे जाएं and मेहनत करें और अल्लाह उसको अजर देगा. From supermodel to superhuman, Yes, Vinny was with us I today. am. Thank you so much. And we will catch No, you it was in so another lovely show. to come. Yeah. Thank you for Mwah. having me Khuda and Hafiz. feeding me such good food. Yes. Thank you, Chop, for hosting us. Yes, thank you. Khuda Hafiz.